All right. Good afternoon, everyone. I am Mannat Sharma, your new teacher over here. I will be teaching growth and development, this portion of your UGC Net Economics. Okay, so let me introduce myself first. I am Mannat. I am from Himachal Pradesh. I did my schooling from Pine Grove School, Kasauli. Thereafter, I came to Chandigarh to pursue BA Honours in Economics from Punjab University, Chandigarh. And thereafter, I continued with Masters in the same department itself. I cleared UGC Net Economics in my Masters itself, and currently I am pursuing PhD in Economics from CRIT Sector 19. So let's begin with our session. I hope you've seen the syllabus of growth and development. If not, let me brief you. First you have economic growth, concepts of economic growth and economic development. This is one topic. Then you have indicators of economic development. Indicators of economic development. Then we have certain theories of economic development, and economic growth separately. Then we have certain other models as well. For example, technical progress and endogenous growth models. Okay, endogenous growth models. And then we have certain social indicators like health, education, okay, and gender development. This is your basic syllabus, and we'll one by one take up all the topics. ठीक है जी? Okay. So first of all, tell me, what do you mean by economic growth and economic development, and what is the difference between the two? Are they same or are they different? Just think upon it. Okay. Let's see what is growth. Let's talk about growth. अब growth हम कैसे बोलते हैं? If say I am in a certain position in an organization, ठीक है, I am teaching, my salary say is 50,000 per month right now. Say in 2 to 4 years, my salary increases to 80,000 and I have a promotion. So when my income is increasing from 50,000 to 80,000, I say that I am growing, right? My income is increasing, I am growing. We call it growth in terms of in monetary terms, right? Similarly, if we talk about economic growth is the increase in the GDP, of a country, the national income of a country. This is termed as economic growth. So when there is an increase in the national income, you term it as economic growth. So this is in monetary terms, right? It is in monetary terms, and it is quantifiable. What is it? It is quantifiable. मतलब हम इसको quantify कर सकते हैं, measure कर सकते हैं. We can measure it, right? ठीक है जी. Now let's talk about development. Is economic growth and development same? Can we say that if an economy is growing, that means it is developing? No, obviously not, because economic growth is a narrow concept. It is a narrow concept, but development is a broader concept. Why is it broader? Because it takes into account certain social indicators like health, education, literacy rates are increasing. If education is increasing, if the health facilities are increasing, then we say that an economy is developing. Okay, then we talk about economic development. So can we say that if this is economic growth, then this is economic development, which means that for economic development to happen, economic growth is important. Why is it important? अगर income होएगी हमारे पास, तभी तो हम उसे invest करेंगे in health, education, तभी तो हम इसे invest करेंगे. Otherwise income ही नहीं होएगी तो फिर हम कैसे invest करेंगे? So we can say that economic growth is a prerequisite to economic development. Okay जी? This is the basic concept of economic growth and economic development. Okay, now let's see. I hope you can see over here. Economic growth is the positive change in the real output of the country in a particular span of time. वही बात हो गई. If your income is increasing, that means your economy is growing.
If the national income is increasing, the economy is growing. Economic development involves rise in the level of production in an economy. Economic growth तो हो ही रही है, level of production is increasing. Along with that, there is advancement in technology, improvement in living standards, health, education, etc. ये सब चीज़ें economic development के अंदर आ जाती हैं. Okay, concept मैंने बता दिया आपको. Economic growth is a narrow concept and economic development is a broad concept. Increase in the indicators like GDP per capita income, है ना. तो इकोनॉमिक ग्रोथ का स्कोप क्या है, हम कैसे मेजर करते हैं, जीडीपी से मेजर करते हैं, राइट. वी हैव जीडीपी, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी, वो हो गया हमारा जीडीपी. इससे हम मेजर करेंगे. वाई? बिकॉज इट इज क्वांटिफाइबल. और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे देखते हैं, क्वांटिफाई नहीं हो सकती, इसको हम सिर्फ एवोल्यूशन के जरिए देख सकते हैं कि आज ऐसा था, आज से 10 साल बाद कैसा है, राइट. कि पिछले 10 साल पहले लिटरेसी रेट क्या था, अब लिटरेसी रेट क्या है, उस तरह से इसे मेजर किया जाता है. ठीक है. So it is we can see it by improvement in the life expectancy rate, infant mortality rate, literacy rate, poverty rates. इसके थ्रू हम economic development को measure कर लेते हैं, right? Now economic growth is a short term process and economic development is a long term process. Why do we say? Because economic development is a continuous process. आप continue ही करते रहते हैं. You know, ये नहीं बोल सकते आज अभी completely developed हो गया economic development, because you keep improving, you keep bringing new health facilities, you keep bringing new medicines, new drugs are available for treatment. अभी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी भी ट्रीट नहीं हो सकती, राइट. उनको कोई अभी ट्रीटेबल है ही नहीं. तो उसके लिए इट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, इट इज़ इवॉल्विंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. शॉर्ट टर्म प्रोसेस क्यों? क्योंकि हम इसे यूजुअली एनुअली मेजर करते हैं, राइट. एनुअली मेजर करते हैं हम, जीडीपी को एनुअली मेजर करते हैं. तो थोड़े थोड़े पीरियड ऑफ टाइम में हम चेक करते हैं if जीडीपी इज ग्रोइंग और नॉट. नाउ economic growth is applicable to developed economies and economic development it is applicable to developing economies. अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अगर तो कोई डेवलप्ड कंट्री है ना, उसकी तो हम जीडीपी की बात करेंगे, ग्रोथ की बात करेंगे. वाई? क्योंकि हम अगर वो डेवलप्ड है, इसका मतलब जो बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो तो अच्छा ही है. अब वो ऑलरेडी लोगों के पास है, तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट ग्रोथ टर्म्स. लेकिन कोई एक पुअर इकोनॉमी है, कोई डेवलपिंग इकोनॉमी है, उसके पास तो फैसिलिटीज़ हैं ही नहीं, कम फैसिलिटीज़ हैं, तो उसको हम यूजुअली इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं. ठीक है. क्योंकि डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है. जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज, बट कैन वी से दैट वी आर अ डेवलप्ड इकोनॉमी? नो. दिस इज़ द रीज़न. क्यों? बिकॉज हमारे जो डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं वो थोड़े कम हैं एज कम्पेयर टू द डेवलप्ड कंट्रीज. ओके. देन हाउ इज इट मेजर्ड? आई हैव टोल्ड यू, upward movement in the national income. If your national income is increasing, you are having economic growth. Upward movement in real national income. real का क्या मतलब है? जब हम real की बात करते हैं, मतलब हम उसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर रहे हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स को एडजस्ट कर रहे हैं. अब ऐसा बोल सकते हैं दैट इंडियन इकोनॉमी से फॉर एग्जाम्पल इज ग्रोइंग एट 8%, बोल दिया. लेकिन अगर हमने इसमें इन्फ्लेशन को नहीं मेजर किया, इन्फ्लेशन भी तो बढ़ रही है, से इन्फ्लेशन इज एट 6%, अगर रियल टर्म्स में देखें तो इकोनॉमी सिर्फ 2% ग्रो हो रही है, सिर्फ 2% ग्रो हो रही है. इसीलिए हम उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रियल टर्म्स में मेजर करते हैं. ओके. विच काइंड ऑफ चेंजेस आर एक्सपेक्टेड? यहाँ पे क्वांटिटेटिव चेंज बोल दिया, यहाँ पे क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव चेंज. इकोनॉमिक ग्रोथ तो बोल ही रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ डेवलपमेंट भी हो रही है, सोशल इंडिकेटर्स भी इम्प्रूव हो रहे हैं, राइट. टाइप ऑफ प्रोसेस, दिस इज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस एंड दिस इज अ मैनुअल प्रोसेस. ऑटोमेटिक और मैनुअल का क्या मतलब है कि इसमें ज़्यादा गवर्नमेंट की रोल नहीं है, गवर्नमेंट का रोल इसमें ज़्यादा नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट का रोल इन दिस केस चाहिए ही चाहिए है, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर वोंट इन्वेस्ट इन ऑल दिस, राइट. वो वेलफेयर की बात नहीं करेगा, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर की बात नहीं करेगा, वो प्रॉफिट मोटिव की ही बात करेगा. अगर वो हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, इट विल प्रोवाइड टू दोज हु कैन अफोर्ड. हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं टू दोज हु कैन अफोर्ड. लेकिन दोज हु कांट अफोर्ड, उनका क्या? उनके लिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज नेसेसरी. तो उसके लिए हमने बोल दिया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ मैनुअल प्रोसेस. ठीक है. व्हेन डज इट अराइज? इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. मैंने बोला ना एनुअली हम इसे मेजर कर लेते हैं, एंड इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस. ठीक है. हम इसे एनुअली नहीं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विद एवोल्यूशन हम उसे देखते हैं. ठीक है जी. ऑन द बेसिस ऑफ दिस, now what you're going to do is you're going to pause the video and you will try to solve this question. I have
added some questions in between. You're going to solve those questions, take a screenshot of it or pause the video. You are going to solve the MCQ and tomorrow in class we are going to discuss about it. Okay, is that clear? Let's move forward. Then there's another question. Pause the video, solve it, try to solve it. If you have any doubts, come tomorrow, we'll discuss it in class. Now let's talk about indicators of economic development. Tell me, what do you mean by an indicator? Indicator का क्या मतलब होता है? हम कैसे बोलें कि वो एक indicator है? An indicator is a measurement or value that gives you an idea of what something is like. कि मतलब कोई चीज़ कैसी है, मेजर कैसे करें किसी चीज़ को, कैसे हम पता करें कि वो एक कि मतलब जीडीपी बढ़ रही है, कैसे मेजर करेंगे? उसको इंडिकेट करने के लिए, उसे मेजर करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, जो भी टूल्स हम यूज़ करते हैं, उसको बोल दिया हमने इंडिकेटर. ठीक है, अब मैंने बोला इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट दे हैव इवॉल्व्ड ओवर टाइम. बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जैसे जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, HDI, इनइक्वालिटी एडजस्टेड HDI, मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, global hunger index. Let's discuss them one by one. What is GDP now? वैसे तो you studied in macroeconomics, so you might be knowing कि GDP है क्या. It is the value of the final goods and services produced in an economy in a period of time. है ना, जितना भी एक इकोनॉमी में, सपोज हमने एक फाइनेंशियल ईयर ले लिया, उसमें जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको हम मॉनेटरी टर्म्स में जब बताएंगे उसे बोल दिया हमने GDP. ठीक है. It provides an economic snapshot of a country used to estimate size of an economy and its growth rate. है ना, तो ये हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ का इंडिकेटर है इनिशियली. अब क्या हुआ, हम इसे अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी हम इकोनॉमिक ग्रोथ को ही यूज़ करते थे पहले, इसी को GDP को ही यूज़ करते थे इवन टू असेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ये पुराने टाइम की बात कर रही हूँ मैं. दे सेड इफ़ योर इकोनॉमी इज़ ग्रोइंग, इफ़ योर GDP इज़ ग्रोइंग, दैट मीन्स यू आर इकोनॉमिकली डेवलपिंग. वो तो बाद में इंडिकेटर्स डेवलप हुए कि नहीं भाई, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है इसका मतलब ये नहीं है कि डेवलपमेंट भी हो रही है. ये इसका ड्रॉबैक था. ये तो सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में जितने गुड्स एंड सर्विसेज है उनको मॉनेटरी टर्म्स में उन्होंने कैलकुलेट कर दिया. बट इज डेवलपमेंट क्वान्टिफाइबल? इज इट जस्ट फेयरनेस है, जस्ट है, इक्विटी है, पूरेस्ट ऑफ द पुअर क्या ग्रो हो रहे हैं? GDP तो 10% ऑफ द पॉपुलेशन से भी ग्रो हो सकती है, अडानी अंबानी से भी ग्रो हो सकती है पॉपुलेशन, तो सिर्फ बाकी पूरेस्ट ऑफ द पुअर रहें. तो GDP में हम वो कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, सबकी कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं कि सारी पॉपुलेशन की कैलकुलेशन नहीं हो रही है. और GDP को कैलकुलेट करने के लिए 3 मेथड्स है. वी वोंट गो डीप इनटू दीज मेथड्स क्योंकि ये मैक्रो का कॉन्सेप्ट है, आपने पढ़ी लिया होगा अभी तक, राइट? चलिए, देन वी हैव पर कैपिटा इनकम. अब जब GDP को हमने मेजर किया, हमने उसे नॉर्मली बोल दिया कि गुड्स एंड सर्विसेज जितना प्रोड्यूस हुआ है इकोनॉमी में एक साल के अंदर अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर, उसको हमने बोल दिया GDP. ठीक है. अब हमने इसी को और रिफाइन किया, थोड़ा सा बेटर करने के लिए हमने क्या किया, पर कैपिटा इनकम लाया. अब पर कैपिटा इनकम क्या है? इट इज़ द एवरेज अमाउंट ऑफ मनी अर्नड पर पर्सन इन अ कंट्री कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग कंट्रीज टोटल इनकम बाय इट्स पॉपुलेशन. तो इसमें हमने क्या किया, टोटल इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया. से आपने अपनी टोटल इनकम कैलकुलेट करी 50,000. एक पर्टिकुलर इकोनॉमी में 50 लोग हैं, तो आपकी पर कैपिटा इनकम क्या आ गई? 1000. इट इज़ बेटर देन GDP क्योंकि ये पॉपुलेशन को, दे आर टेकिंग इनटू अकाउंट पॉपुलेशन. लेकिन इसमें क्या बोल रहे हैं कि 1000 एवरीबडी, ईच जो जितने भी लोग हैं, everyone is earning 1000. लेकिन is it possible? Because some might be earning say 30,000, some might be earning 20,000, some 5,000. तो ये जो डिस्पैरिटी है ये कहाँ से पता चलेगी? अभी तो हमने इक्वली डिवाइड कर दिया, ये कहाँ से पता चलेगी? दैट इज वाई ये फ्लॉड कॉन्सेप्ट था. ठीक है. इट हैज सम लिमिटेशन, इट डजंट अकाउंट फॉर इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन को नहीं दिखता ये कि भाई इन्फ्लेशन कितनी है इकोनॉमी में. ठीक है. नॉन मॉनेटरी एक्टिविटी कोई भी नहीं इसमें इंक्लूडेड है. अब जो हाउसवाइफ्स हैं क्या उनकी कोई भी वैल्यूएशन नहीं है? वो जो सारा दिन अपनी सर्विसेज देते हैं उसकी कोई वैल्यूएशन नहीं है, तो नॉन मॉनेटरी एक्टिविटी नहीं किया. ठीक है. नॉन अर्निंग इंडिविजुअल्स को भी इसको इंक्लूड करते हैं.
चिल्ड्रन, बेबीज, सबको इंक्लूड करते हैं। बेबी थोड़ी ना कोई कमा रहा है। बिलो 14 यू से 14 ईयर्स एंड बिलो यू से दैट यू नॉट अर्निंग, फिर उसमें वो भी पॉपुलेशन में इंक्लूड कर दिया। दैट इज वाई वी से दैट इट इज ऑल्सो फ्लॉड कॉन्सेप्ट। इससे भी हमें नहीं पता चल रहा एक्यूरेटली दैट देयर इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैपनिंग और नॉट। ठीक है जी। नाउ लेट्स हैव द अदर इंडेक्स दैट इज PQLI, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। अब आपने इसमें क्या याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। किसने दिया था ये कॉन्सेप्ट? मॉरिस डी मॉरिस इन 1979, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है इसको, किसने दिया था? मॉरिस डी मॉरिस। इन विच ईयर? 1979। क्या करता है ये? इट अटेम्प्ट्स टू मेजर द क्वालिटी ऑफ लाइफ और वेलबींग ऑफ अ कंट्री। क्वालिटी ऑफ लाइफ, this index refers betterment of the physical quality of life of human beings as economic development। तो ये क्या मेजर करता है? क्वालिटी ऑफ लाइफ मेजर करता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे मेजर करता है? अब उसके लिए उन्होंने 3 इंडिकेटर्स दिए। यू हैव टू लर्न दीज इंडिकेटर्स। ये तीनों इंडिकेटर्स याद होने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एग्जाम से इसमें क्वेश्चन आता है, ऐसे पूछ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ PQLI, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर इज इंक्लूडेड इन PQLI और HDI, आगे भी HDI भी बताऊंगी। तो ये याद रखना है, 3 है यहाँ पे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1, लाइफ एक्सपेक्टेंसी अभी देखते हैं इसका मतलब क्या है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ्स पर 1000 लाइफ बर्थ्स एंड लिटरेसी लेवल। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कितना कोई जी सकता है, व्हाट इज द लेवल, कहाँ तक एक एवरेज लाइफ स्पैन कितना है एक पर्सन का, वो हो गया लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, कितने इन्फेंट्स की डेथ हो रही है पर 1000 पॉपुलेशन, पर 1000 लाइफ बर्थ्स। ठीक है। फिर लिटरेसी लेवल, जनरल एबिलिटी टू रीड एंड राइट। ठीक है। कैसे कैलकुलेट करते हैं PQLI को? PQLI इज कैलकुलेटेड थ्रू अरिथमेटिक मीन। कैसे? लाइफ एक्सपेक्टेंसी प्लस योर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट प्लस योर लिटरेसी लेवल डिवाइडेड बाय 3। पहले हम एक एक करके इसका इंडिकेटर को कैलकुलेट करेंगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कैलकुलेट करेंगे, फिर हम IMR को कैलकुलेट करेंगे, फिर हम लिटरेसी लेवल को कैलकुलेट करेंगे। जब उनकी वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी उनको हम डिवाइड कर देंगे 3 से। ठीक है। और इसकी वैल्यू इट अरेंजेस फ्रॉम 0 to 100, जिसमें बोला अगर 0 है वर्स्ट, 100 है बेस्ट। So if your indicator, your PQLI is closer to 100, that means your physical quality of life is good, and if it is closer to 0, that means your situation is worse off। ठीक है जी, इतना आ गया आपको समझ? Let's move forward। तो यहाँ पे मैंने बोला लिटरेसी लेवल इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ एजुकेशन। लिटरेसी लेवल को हम एजुकेशन से देखते हैं। ठीक है। परसेंटेज ऑफ एजुकेटेड पीपल इन अ कंट्री, परसेंटेज ऑफ एजुकेटेड पीपल इन अ कंट्री, इसको बोल दिया हमने लिटरेसी लेवल। एजुकेशन हो गया ये। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या हो गया? नंबर ऑफ ईयर्स अ चाइल्ड इज एक्सपेक्टेड टू लिव एट द टाइम ऑफ बर्थ इज नोन एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। कितना वो रहेगा, अभी उसकी बॉर्न हो गया वो, अब वो कितना एवरेज उसकी लाइफ स्पैन कितनी है, वो हो गया लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है? Number of infants that die out of every 1000 infants before completing their first year is known as infant mortality rate। ठीक है, ये हो गया आपका IMR। Then we have another indicator, Human Development Index। ये कब आया और किसने बनाया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लेना है आपने। अमर्त्य सेन एंड महबूब उल हक इन 1990। कौन से साल में? 1990। किसने दिया? अमर्त्य सेन एंड महबूब उल हक। ठीक है जी। और कौन पब्लिश करता है? दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाय UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये इसे पब्लिश करता है, याद रखना इसको, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। ओके। नाउ HDI कंसिडर्स 3 फंडामेंटल डायमेंशंस। कौन से 3? हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। प्लीज लर्न दिस,
ये मैंने आपको लेटेस्ट वाला प्रोवाइड किया, इससे पहले भी इंडिकेटर्स थे बट दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू क्योंकि ये रिसेंट है, 2010 के ये रिसेंट है, उससे पहले भी मेजर करते थे लेकिन उसका क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सेम था, थोड़े थोड़े बहुत चेंजेस थे, वी डोंट नीड टू गेट इनटू दैट, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड ये तीन, हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हेल्थ क्या है, इसमें कैसे मेजर करती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मैंने आपको बता दिया। एजुकेशन, एजुकेशन भी, इसके भी आगे 2 इंडिकेटर्स है, ये भी याद होने चाहिए है, जो मैं स्टार मार्क कर रही हूँ इसको याद होना चाहिए है। One is mean years of schooling and the other one is expected years of schooling. Mean years of schooling क्या मतलब है, if you are 25, your age is 25 and above, तो उसमें आपने कितनी लेवल ऑफ एजुकेशन ली है, 10th पास हो, 12th पास हो, PhD करी है, डिफरेंट करा है, ये सब किया है, राइट, वो देख रहे हैं इसमें मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग में, विच असेसेस द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एजुकेशन रिसीव्ड बाय अडल्ट्स एजेड 25 ईयर्स एंड ओल्डर, है ना, कितने एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स आपने पढ़ाई करी है। एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग क्या है, अब एस्टिमेट्स द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग दैट अ चाइल्ड ऑफ स्कूल एंट्रेंस एज इज एक्सपेक्टेड टू रिसीव। अगर मैं स्कूल जाने वाली एज है मेरी, सपोज आई एम 10 years old और आई एम 8 years old, तो मेरे अभी कितने नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग हैं अभी बचे हुए, कितना मुझे मिलेगा, कितनी एजुकेशन, कितने साल की एजुकेशन मुझे मिलेगी, वो हो गया एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। समझ आ गया। एजुकेशन को हम 2 पैरामीटर्स से देखेंगे, 2 इंडिकेटर्स से देखेंगे, वन इज मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड द अदर इज एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। याद होना चाहिए, प्लीज लर्न दिस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू विल डेफिनेटली हैव अ क्वेश्चन ऑन दिस बिकॉज हर साल इससे क्वेश्चन जरूर आता है। ओके, एंड वैल्यू ऑफ HDI कैसे कैलकुलेट होती है, ज्योमेट्रिक मीन से, और उसकी वैल्यू रेंजेस बिटवीन 0 and 1, 0 वर्स्ट, 1 बेस्ट। अब इसका हम एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट HDI, अंडर रूट लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, ज्योमेट्रिक मीन ऐसे कैलकुलेट करते हैं ना, if you have any idea of little about maths, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स इनटू एजुकेशन इंडेक्स इनटू स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स, है ना। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम कैसे देखते हैं, इनकम से, ठीक है जी। तो इससे हमने अपना ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट कर लिया एंड दिस इज हाउ यू कैलकुलेट HDI। ओके, अच्छा जी, नाउ वी हैव अनदर इंडिकेटर दैट इज मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ग्लोबल MPI की बात कर रहे हैं हम। It was created by OPHI in collaboration with UNDP in 2010. Very important, please learn it. OPHI, Oxford Poverty and Human Development Initiative plus United Nation Development Program in 2010, इन्होंने ये मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स लॉन्च किया था। क्यों लॉन्च किया था, बिकॉज यूनाइटेड नेशंस ने बोला दैट पॉवर्टी इज अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट, हम इसे सिर्फ लैक ऑफ इनकम से एसोसिएट नहीं कर सकते, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़, लैक ऑफ पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सब चीज़ों को इंक्लूड करके ही हम पॉवर्टी को मेजर कर सकते हैं। तो पॉवर्टी को मेजर करने के लिए हमने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स देख लिया, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स, ये याद रखना है, इट इज़ पब्लिश्ड एनुअली, ठीक है। इसके भी 3 डायमेंशंस हैं टू असेस पॉवर्टी, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हेल्थ कैसे, इसमें अब जो 3 डायमेंशंस हैं वो अलग से 10 इंडिकेटर्स में डिवाइडेड हैं, ठीक है। हेल्थ को डिवाइड कर दिया हमने चाइल्ड मोर्टेलिटी में, न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड्स में। चाइल्ड मोर्टेलिटी का मतलब क्या है, अंडर 5, इसको नोट कर लेना, चाइल्ड मोर्टेलिटी को अंडर 5 डेथ्स ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, अंडर 5, अंडर द एज ऑफ 5 जो डेथ्स हो रही हैं बच्चों की पर 1000 लाइव बर्थ्स इज चाइल्ड मोर्टेलिटी। न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड्स तो आपको पता है, एडिक्वेट कैलोरीज होनी चाहिए, राइट। एजुकेशन को डिवाइड किया 2 इंडिकेटर्स में, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, कितने साल वो बच्चा स्कूल जा रहा है, चाइल्ड एनरोलमेंट, एनरोलमेंट का मतलब पता है क्या होता है, अटेंडेंस, जैसे आपने एनरोल करा इस इंस्टीट्यूट में टू स्टडी, उसको बोल दिया हमने चाइल्ड एनरोलमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उसको कैसे देखा हमने, इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं है, हाउस में फ्लोरिंग है कि नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है कि नहीं है, सैनिटेशन है, कुकिंग फूड है, एसेट्स हैं, ये सब चीज़ें इंक्लूड करके हमने एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाला इंडेक्स बना लिया।
ठीक है. अ पर्सन इज मल्टी डायमेंशनली पुअर इफ दे आर डिप्राइव्ड इन 33% ऑफ द डायमेंशन. प्लीज लर्न दिस ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एक तो ये इंडिकेट 3 डायमेंशन एंड 10 इंडिकेटर्स, वेरी इंपॉर्टेंट. लर्न दीज. किसने दिया था, कब दिया था, कितने इंडिकेटर्स हैं, कितने डायमेंशन है, 3 डायमेंशन एंड 10 इंडिकेटर्स. ये नंबर भी आ जाता है इनफैक्ट एग्जाम में. ठीक है. फिर मल्टी डायमेंशनली पुअर कब बोल दिया हमने, अगर वो 33% ऑफ द डायमेंशन में अगर डिप्राइव्ड है उसको बोल दिया हमने मल्टी डायमेंशनली पुअर. देन हाउ इज इट मेजर्ड, प्रोडक्ट ऑफ हेड काउंट रेशियो इनटू इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी. दिस इज इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी एंड दिस इज हेड काउंट रेशियो. इसका फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार. इतना डिटेल में इस फॉर्मूला को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, H इंटू ए. किस मतलब ये फॉर्मूला किस पे बेस्ड है, अल्कायर एंड फॉस्टर. पहले ऐसे क्वेश्चन नहीं आते बट ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं बिकॉज द लेवल ऑफ पेपर यू नो इट्स चेंजिंग एंड इट्स इंक्रीजिंग, राइट. तो अल्कायर एंड फॉस्टर के ऊपर हमने MPI का फॉर्मूला बनाया जिसमें H इज़ योर हेड काउंट रेशियो, A इज़ योर इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी. हेड काउंट रेशियो हमने मतलब टोटल पुअर, इसको कैसे करा हमने, टोटल पुअर डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन. इसको हमने इस तरह से कैलकुलेट कर लिया. ठीक है. और इंटेंसिटी का क्या मतलब होता है कि जो पुअर, यहाँ से हेड काउंट रेशियो से हमने कैलकुलेट कर लिया कि पॉपुलेशन में से कितने पुअर हैं, कि अगर 1000 की पॉपुलेशन है उसमें से कितने पुअर हैं, सपोज 500 पुअर हैं, वो हमने निकाल लिया हेड काउंट रेशियो. लेकिन जो पुअर निकले हैं, जो 500 लोग और अगर पुअर निकले हैं वो कितने ज़्यादा पुअर हैं, क्या डिफरेंस है उनमें, कितने कितने के ज़्यादा पुअर हैं वो हमने देखना है थ्रू इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी. ठीक है. अच्छा, अब देयर आर सम मोर इंडिकेटर्स जो आपको ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए बिकॉज इनसे भी क्वेश्चन आ सकता है. जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, ये भी 1995 में लॉन्च हुआ था, ये याद रखना है आपने. ये क्या करते हैं, इसमें सेम HDI वाले इंडिकेटर्स ही हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, इनकम, सेम HDI वाले. बट जो इम्पोर्टेंट चीज़ में है, इट इज़ एडजस्टेड फॉर जेंडर इनइक्वालिटी. मतलब हमने जेंडर इनइक्वालिटी को माइनस कर लिया है इसमें से. जेंडर इनइक्वालिटी मतलब मेन और विमेन में, इन सब में जो भी जितने भी जेंडर आइडेंटिफाई करते हैं उनमें कितनी डिस्पैरिटी है उसको बोल दिया हमने जेंडर इनइक्वालिटी, राइट. ओके. देन वी हैव इनइक्वालिटी एडजस्टेड HDI. ये क्या है, इसमें भी हमने सेम इंडिकेटर्स लिए HDI वाले, हेल्थ, एजुकेशन, इनकम, सेम लिया, लेकिन इसको हमने एडजस्ट किया इनइक्वालिटी से. इनइक्वालिटी किसमें, हेल्थ, एजुकेशन और इनकम की ही इनइक्वालिटी में हमने इसको ओवरऑल इनइक्वालिटी, उसमें हमने क्या बात करी थी, जेंडर इनइक्वालिटी की, ये याद रखना है, जेंडर इनइक्वालिटी की. और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ओवरऑल इनइक्वालिटी की. कंटिन्यू. ओके ओके, ठीक है. इसमें हम बात कर रहे हैं ओवरऑल इनइक्वालिटी की. ओके, ये हो गया हमारा इनइक्वालिटी एडजस्टेड HDI. ये कब आया था, एक तो इंट्रोड्यूस्ड बाय UNDP इन 2010. ठीक है. फिर आके जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन HDR 2010. HDR क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है जो UNDP पब्लिश करता है. ठीक है. अब यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज़ देखते हैं, 3 डायमेंशंस में इनइक्वालिटीज़ को देखते हैं और उसे एडजस्ट करते हैं. किसमें, एम्पावरमेंट, कितना एम्पावर्ड है इंडिविजुअल्स, एम्पावर्ड कितने, एम्पावरमेंट का क्या मतलब होता है, अपने डिसीजंस खुद ले रहे हैं, खुद दे आर सेल्फ दे आर इंडिपेंडेंट. वो हमने देख लिया. एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं ना, दे नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन, वुमेन को एम्पावर करने की बात करते हैं, तो वो इसमें देख रहे हैं. रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसी है, लेबर मार्केट में वेज गैप तो नहीं है, कितनी इनइक्वालिटी है लेबर मार्केट में, राइट. और इसका जो मतलब उसके जो इंडिकेटर्स हैं 0 और 1 में रेंज करता है. ठीक है. 0 का क्या मतलब है, मेन एंड वुमेन आर फेयरली इक्वल. अगर 0 है तो इंडिकेटर, इफ़ इट्स क्लोजर टू 0 मतलब मेन एंड वुमेन आर फेयरली इक्वल, एंड इफ इट्स क्लोजर टू 1 दैट मीन्स दे आर अनइक्वल. ओके, ये हमने देख लिए कुछ इंडिकेटर्स. Now again pause the video, try to solve this question. समझ आ रहा है, वेल एंड गुड. सॉल्व हो रहा है, वेल एंड गुड. नहीं हो रहा,
कम बैक एंड आस्क मी टुमारो, ठीक है। अच्छा ये भी क्वेश्चन है, इसको भी पॉज करो, ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर टॉपिक दैट इज मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, जिनको बोल दिया हमने MDGs। वेरी इंपॉर्टेंट, कब इस्टेब्लिश हुए थे? 2000 में, ठीक है, UN मिलेनियम समिट के थ्रू। क्या एम है इसका? टू रिड्यूस एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड फॉस्टर ग्लोबल पॉवर्टी, ठीक है। पॉवर्टी के लिए है, हमने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स बनाए थे कि हमने इस एक्सट्रीम पॉवर्टी को रिड्यूस करना है ग्लोबली, एट द ग्लोबल लेवल, ठीक है। 8 प्रॉब्लम्स वर इंडिकेटेड, MDGs में 8 प्रॉब्लम्स वर इंडिकेटेड, ये हमने यहाँ पे 8 लिखी हैं प्रॉब्लम्स। इनको हमने, इन टारगेटेड गोल्स को हमने अचीव करना है, इसको हमने ख़त्म करना है इन सब चीज़ों को बाय द ईयर 2015। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि कब तक है ये? इट इज़ फ्रॉम 2000 टू 2015 MDGs या मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। अच्छा अब क्या है, क्या क्या है देख लेते हैं। फर्स्ट इज इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, ठीक है। गोल नंबर 2 क्या है? अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन यूनिवर्सली सबको फ्री मिलनी चाहिए। प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन, जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, वुमेन की एम्पावरमेंट होनी चाहिए, क्योंकि वुमेन आर ऑलवेज मोस्टली हिस्टोरिकली एक्सप्लॉइटेड। रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, जो अंडर 5 एज के जो बच्चे मर रहे हैं वो हमने रिड्यूस करना है। इम्प्रूव मेटर्नल हेल्थ, मेटर्नल हेल्थ यानी कि जो फीमेल्स हैं उनकी हेल्थ को हमने इंश्योर करना है, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनकी हमने हेल्थ को इंश्योर करना है। कम्बैट HIV एड्स मलेरिया एंड अदर डिजीजेस, इनको कम्बैट करना है, ख़त्म करना है, कम करना है इनका इंसिडेंस। इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, एनवायरनमेंट को हमने सस्टेनेबली यूज़ करना है। डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप और फॉर डेवलपमेंट, ग्लोबली सब मिलके, इकट्ठे मिलके, ग्लोबली ग्लोबल लेवल पे सबको अगर इकट्ठे, सब लोग इकट्ठे मिलके अगर इन सब चीज़ों को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, कॉम्बैट करने की कोशिश करेंगे, सो वी विल बी इन अ बेटर प्लेस टू अ बेटर फ्यूचर अहेड, ठीक है। अब इसको याद कैसे करना है? एक तो यू हैव टू लर्न ऑल दीज 1 to 8 गोल्स। एक ट्रिक बता देती हूँ जिस तरह से मैंने याद किया था। पहले लिखना है हमने पेग, हैग, और बीच में हमने डाल देना है CM। P नो पॉवर्टी, पॉवर्टी को ख़त्म करना है। यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी। C से क्या है आपका? चाइल्ड मोर्टेलिटी को रिड्यूस करना है, मेटर्नल हेल्थ को करना है ठीक, HIV एड्स को ख़त्म करना है। E से आपने इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, सॉरी दिस इज़ फॉर एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी। एंड G ग्लोबल पार्टनरशिप, ठीक है। इस तरह से यू कैन रिमेंबर देम। इफ़ यू नॉट एबल टू सी देन एक बार आई एम राइटिंग इट अगेन। पहले आपने लिखना है पेग, पेग तो सबको याद रहता है राइट। देन वी हैव हैग CM। इस तरह से यू कैन लर्न, दिस इज अ शॉर्ट अब्रीविएशन, क्योंकि 8 हैं तो इट इज़ ईजी टू लर्न देम, राइट। ठीक है जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। जस्ट अ सेकेंड। Okay, now let's see what are the key achievements of MDGs। थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा जनरल पर्सपेक्टिव से इट्स इम्पॉर्टेंट, एंड हो सकता है इससे क्वेश्चन भी बने, यू नेवर नो, डायनामिक हो गया आजकल बहुत, राइट। मोर देन 1 बिलियन पीपल हैव बिन लिफ्टेड आउट ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी सिंस 1990, ये मोर देन 1 बिलियन पीपल है ना। चाइल्ड मोर्टेलिटी ड्रॉप्ड बाय मोर देन हाफ सिंस 1990। द परसेंटेज ऑफ अंडरवेट चिल्ड्रन अंडर 5 years old in developing countries dropped from 28% to 17%। 1990 से 2013 का डेटा है ये। न्यू HIV infections globally declined by 38% between 2001 and 2013। Gender inequality in primary and secondary education was eliminated in some countries। some countries है ये, not everywhere। ठीक है जी, ये ओके। Now we have the concept of sustainable development and sustainable development goals। What do you mean by sustainable development? ये तो आजकल it has become such a common term। Everybody is talking about sustainable development।
तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कब सबसे पहले डिफाइन की थी? बाय ब्रंटलैंड कमीशन इन इट्स रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर इन 1987। ये याद रखना है, ब्रंटलैंड कमीशन याद रखनी है, 1987 याद रखना है, आवर कॉमन फ्यूचर याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी डेफिनेशन क्या है? डेवलपमेंट विच मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स। मतलब कि सिंपल शब्दों में हमें एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इस एक्सप्लॉयटेशन को हमने ख़त्म करना है सो दैट आवर फ्यूचर जनरेशंस विल ऑल्सो हैव द सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज दैट वी हैव। ठीक है, समझ आ गया इतना कि जो हम रिसोर्सेज आज यूज़ कर रहे हैं उसे हमें ऐसे नहीं एग्जॉस्ट कर देना कि बस आगे की जनरेशन ही नहीं है, बिकॉज हमने भी तो अपने एंसेस्टर्स से इनहेरिट किया है। अगर हमारे एंसेस्टर्स ने उसे अच्छे से यूज़ ना किया होता हम इनहेरिट ही नहीं कर पाते। वैसे ही हमें अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज को अच्छे से जुडिशियसली यूटिलाइज करना है। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए, SDGs बनाए। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉल्स फॉर कंसर्टेड एफर्ट्स टुवर्ड्स बिल्डिंग एन इंक्लूसिव सस्टेनेबल रेजिलिएंट फ्यूचर फॉर पीपल एंड प्लैनेट। ठीक है जी, ओके। देन व्हाट इज द नीड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट? हमें क्यों ज़रूरत पड़ी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की? क्यों हम आज इतना ज़्यादा बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में? व्हाई डू वी टॉक अबाउट इट? इसको 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। वन इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज तो है ही, क्लाइमेट चेंज। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज ये तो इकोनॉमी का बेसिक फंडा ही है कि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है एज कंपेयर्ड टू द रिसोर्सेज वी हैव। आवर डिमांड इज मोर दैन द सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज, है ना? स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से, इसीलिए हमें जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन्हीं को हमने अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। ओके, देन वी हैव ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ऑलरेडी हमारे पास इतने स्कार्स रिसोर्सेज हैं, उनको भी हम ओवर एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रही है रिसोर्सेज की, एक्स्ट्रा उसे यूटिलाइज कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, इतनी ज़्यादा लेवल पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, राइट? अर्बन डेवलपमेंट एक्स्ट्रा ही हो रही है। अर्बन हीट आइलैंड का अगर आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्लाइमेट चेंज का है, क्लाइमेट चेंज इतना ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया, इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स कितने ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, स्नोफॉल की जगह ज़्यादा बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, कितना कुछ हो रहा है, हीट वेव्स इतनी ज़्यादा हैं हम देख रहे हैं, टेम्परेचर पता नहीं आसमान छू रहा है, राइट? इन सब चीज़ों, इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर करना है। ओके, देन लेट्स टॉक अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। व्हाट आर दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? अब एक तो हमें याद रखने कितने SDGs हैं, 17 SDGs हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया? दीज आर एन इम्प्रूवमेंट ओवर द MDGs। MDGs किस लिए थे? MDGs they were for, just a second, your MDGs they were for 2000 to 2015। फिर हमने इनको रिन्यू करके SDGs बनाए, कब से कब तक के लिए? 2015 से 2030, 2030 एजेंडा भी बोलते हैं इसे। कौन सा एजेंडा? 2030 एजेंडा के थ्रू हमने 17 गोल्स बनाए। ओके, क्या डिफरेंस था बेसिक इनमें? MDGs ओनली अप्लाइड टू डेवलपिंग कंट्रीज एंड SDGs विल अप्लाई यूनिवर्सली टू ऑल UN मेंबर। जो MDGs थे, एक तो वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स पे फोकस कर रहे थे और वो कम थी प्रॉब्लम्स, बहुत 8 ही थी। एक तो वो किया, ऊपर से दे वर एप्लीकेबल मोर टू द डेवलपिंग इकोनॉमीज ओनली, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज ने मोर और लेस वो अचीव कर लिया था, इसलिए वो सिर्फ था डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। बट नाउ इट इज़ दीज SDGs आर फॉर यूनिवर्सली फॉर एवरीवन, क्योंकि हमने इसमें और भी गोल्स को और डिफाइन किया, एक्सटेंड करा बहुत सारे गोल्स को जो हमें अचीव करना है, जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। ठीक है, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस ने इन गोल्स को अचीव करने के लिए दे लॉन्च्ड 2030 एजेंडा
फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड SDGs, ठीक है। एंड विद इन द नेक्स्ट 15 years दे हैव टू बी completed, दे हैव टू बी अचीव्ड बाय 2030, ठीक है जी। और एक और चीज़ इसमें क्या याद रखनी है, एक तो ये 2015 to 30 के लिए है, 2030 एजेंडा याद रखना है। कितने गोल्स और इंडिकेटर्स हैं, 17 गोल्स एंड 169 स्पेसिफिक टारगेट्स। कितने, 17 गोल्स एंड 169 टारगेट्स। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे कि कितने गोल्स हैं, कितने इंडिकेटर्स हैं, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो ये भी याद रखना है आपने, ओके जी। और एक और चीज़ जो याद रखनी है, दे आर नॉट लीगली बाइंडिंग। लीगली बाइंडिंग का मतलब कि कोई ऐसा वो नहीं है कि इनको करना ही करना है, दीज आर जस्ट गाइडलाइंस कि हाँ हमें ये अचीव करना चाहिए, करना ही होगा वाला एस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा मुश्किल होता है, सबके पेस अलग होती है, कोई कर भी देता है अचीव, कोई नहीं कर सकता, ठीक है जी। तो ये है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ओके। अब इनको देख लें ज़रा, क्या है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये भी याद होने चाहिए 1 to 17। बेशक अंदर के, आपको तो ऐसे अंदर के टारगेट्स जो हैं उनको भी एक बार ही गो थ्रू करना चाहिए। जस्ट ओपन योर इंटरनेट, रीड अबाउट देम, ये आपका होमवर्क है। क्या होमवर्क है आपका, यू हैव टू रीड अबाउट ऑल दीज SDGs, ठीक है। इनका थोड़ा सा डिटेल में आपने इनको रीड आउट करना है, ओके। फर्स्ट क्या है, नो पॉवर्टी, ठीक है। सेकेंड है नो हंगर, गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। सेवेंथ इज क्लीन एनर्जी, गुड जॉब्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, innovation and infrastructure, reduced inequalities, sustainable cities and communities, responsible consumption, protect the planet, life below water, life on land, peace and justice, partnership for the goals. You have to learn all these. So what is your homework for today? Your homework is 1, you have to read the SDGs in डिटेल। एक तो यू हैव टू रीड दिस इन डिटेल, और आपने एक लिस्ट बनानी है, यू हैव टू मेक अ लिस्ट, जितने भी यहाँ पे जो भी गोल्स हैं उसके लिए व्हाट इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डूइंग। फॉर एग्जाम्पल ये सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ है ना, इसके लिए गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द स्मार्ट सिटीज़ मिशन, स्मार्ट सिटीज़ मिशन है इसके लिए, है ना। तो ऐसे ऐसे करके आपने हर एक गोल के अपनी एक नोटबुक लेनी है, गोल लिखना है, साथ में जो इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या क्या अपने मिशंस लॉन्च किए हैं, प्रोग्राम्स, स्कीम्स, सेंटर सेक्टर स्कीम्स है या स्पॉन्सर्ड स्कीम, जो भी है स्कीम्स जितनी भी हैं वो आपने एक लिस्ट बनानी है उसकी, ठीक है। होमवर्क क्लियर है ये, ओके। तो ये आपने ज़रूर करना है। Then I have some questions over here. Pause the video, try to solve them. We'll discuss them in class tomorrow. This is one question. Then we have another question. The United Nations has established how many sustainable development goals and targets? अभी बताया मैंने आपको 17 and 169, ठीक है। तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे इन्हें, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन SDG? आइडेंटिफाई करो, पीछे मुड़ के नहीं देखना, आइडेंटिफाई करो, ट्राई टू सॉल्व इट एंड विल डिस्कस इट इन क्लास टुमारो। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।